Hello friends, I'm back on doing some physics questions. Today we are going to be doing Hong Kong's famous Olympiad, the Hong Kong Physics Olympiad. This is its selection test to go to IPHO that it sends its team to. From today we are going to be doing a daily challenge of some questions from Hong Kong's basic Olympiad, Physics Olympiad, which is around J level. Then we are going to be doing some China, Korean, Russian, Iranian, Indian, and all the way to the final boss IPHO. Even after the IPHO, we'll be doing some harder questions of college. We'll be touching that also. So join me in this precarious challenge adventure. As you can see, the questions are in Chinese because Hong Kong now is in China. The following information is used for question 1 and 2. Three blocks of identical mass are placed on a frictionless table as shown. The center block is initially at rest. Okay, it is initially at rest. Whereas the other two blocks, this and this. Okay, this is the center block. This and this is moving at towards it at the identical speeds v. Okay, at some speed v. We will assume this v1. The center block is the initial velocity. We can see through the visuals, through the left one, then the right one. All motion goes in a single horizontal line. Okay, there is no interaction, there is no curve, no. There is a straight single line. Okay, first question. Suppose that all collisions are instantaneous and completely elastic. After a long time, which of the following will be true? So now we will start with the solution. So let us assume that all three blocks are moving with the same velocity v1 that is given, and they are of some mass m. Okay, and velocity v1. So now we know that it is less. So we will now apply elastic. They've given it's completely elastic. Okay, this is the most important term here. Completely elastic is what? When the kinetic energy, I repeat, the kinetic energy is conserved. Okay. In inelastic, the kinetic energy is not conserved. Okay. And the momentum will be conserved everywhere. So now we have some equations. It will be half mv1 square. Okay. Kinetic energy of the first block, this is at rest, is equal to half into m into v2 square plus half into m into v3 square. Now we will understand why I say. What is v2? V2 is the velocity of the first block or the left block. When after it collides. Okay. And as now we will know that v3 is the velocity of the center block. Okay, velocity after it collides. Now we will start. So we have this equation. Can we take half m common? We will cancel it. We will get v1 squared is equal to v2 squared plus v3 squared. Now we will, what we will say? We will now use conservation of momentum. That will be v1 is equal to v2 plus v3 whole square, the second equation. It will be v1 squared is equal to v2 squared plus v3 squared plus 2v2 v3. Subtract these two. We will get 2v2 v3 is equal to 0. Understood? Now we have a few cases. Case 1, that v2 is equal to 0 and v3 is equal to some number. v3 is equal to v1. Case 3, case 2, v3 is equal to 0 and v2 is equal to v1. Okay. Here, because it's 0, 2 will get cancelled. And to make 0, we need to have 1 0. And we are also using this equation. Now we will put it. So now we will first take this case, case 1. So
then we have first already made the first block collide. Okay, so the third block will come, it will collide, some, okay, boom. Then after it will collide, so this block is, look, v2 is 0, right? So this is now here, this is moving this side, okay, and this is moving this side, v1 at v, this is also moving at v1, okay, this is moving at v1. So can we say that since this is going in left direction, this का speed हो जाएगा minus v1, तो क्या हो जाएगा, तो we will put that half v1 squared m plus half minus v1 whole squared m is equal to the latter kinetic energy, that बार पर kinetic energy बनेगा, यही सब से बनेगा ना, समझे? बिकॉज ये इन एवरी कंडीशन इज कम्प्लीटली इलास्टिक। तो मैं इलास्टिक का ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, मतलब एनर्जी, और मोमेंटम का लिख सकते हैं v1 प्लस m v माइनस 1 इज इक्वल टू लेटर मोमेंटम। सो नाउ हियर देखो, यहाँ पर हम लोग माइनस v1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 इंटू v1 होल स्क्वायर m, ये दोनों कैंसिल, दिस विल बी v1 स्क्वायर m, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लेटर, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 10 10 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम ऑफ लेटर। सो नाउ इफ मोमेंटम में क्या होता है, mv, तो if mv is equal to 0, तो v will have to be 0 because m is some constant। तो if v 0 हो जाएगा, मतलब v1 0 हो जाएगा, आई मीन, तो if v1 0 हो जाएगा तो यहाँ पर v 0 आ जाना चाहिए, हाँ, तो if 0 हो जाना चाहिए तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, बिकॉज हम लोग को तो आ रहा है v1 स्क्वायर m, एंड v1 स्क्वायर m क्या होता है, दैट इज दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज v1 तो गिवन है, दैट कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, तो टन टन खत्म, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें खत्म हो गया सिनेरियो, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। नाउ वी हैव द सेकंड केस, तो हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे और आ जाएंगे, दैट वो होगा, बिकॉज ये यहाँ पर टक्कर देगा, ओके, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, बिकॉज आई सॉल्व्ड इट बिफोर एंड आई गॉटन आंसर, कैलकुलेशन से टाइम बहुत लग जाएगा दोनों। तो यहाँ से कॉलिजन होगा, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, ये हिट होगा और जाएगा पीछे, ओके, और ये वाला आएगा, ये वाला हिट होगा, ये फिर से जाएगा पीछे, बिकॉज दोनों इलास्टिक है, ठीक है, तो ये दोनों पीछे पीछे चल जाएगा, तो खत्म हो गया, खेला हो गया इलास्टिक, बिकॉज इसमें भी हिट होगा तो फिर से ये भी हिट होगा ना, तो दैट्स व्हाई ये वाला सिनारियो हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई हम लोग ये वाला हो जाएगा, दैट हम लोग ये भी हिट हो जाएगा पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट इन इनिशियल पोजीशन, और डी आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, तो हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। Suppose that all collisions are instantaneous and completely elastic after a long time, which of the following is true? Okay, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, दोनों सेमी ब्लॉक्स पर मतलब है, तो अभी आपको पता चल रहा है कोई डिफरेंस नहीं, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक। नाउ आप लोग बताइएगा इन इलास्टिक क्या होता है भाई, तो इन इलास्टिक होता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ओके, और परफेक्टली मतलब काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होगा, एंड इट विल स्टिक टुगेदर, ओके, ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, वो लोग ऐसा चिपक जाएगा, गम जैसा चिपक जाएगा, तो यहाँ पर ब्लॉक जा रहा है, फेविकॉल का गम जैसा चिपक जाएगा, तो हम लोग सेम लगेगा, यदि इसका कम है लेंथ और इसका ज्यादा है, तो पहले ये ही हिट होगा, तो इफ ये हिट होगा, देखिए
यहाँ पर एक ब्लॉक जा रहा है, ये हिट होगा। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट मोस्ट क्लोजर है, तो फर्स्ट कोलिजन विल बी लेफ्ट ऑब्वियसली। तो हम लोग अज्यूम करते हैं M1 and M, V1 and M, वेलोसिटी एंड मास। तो नाउ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो लगी नहीं यहाँ पर। तो क्या लगेगा, mv1 + m × 0 इज इक्वल टू 2m, बिकॉज मास चिपक जा रहा है। तो ये इंटू वेलोसिटी 2, फाइनल अलग बात पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। mv1 = 2m × v2, कैंसल कैंसल, v1/2 = v2, आंसर। ओके, अभी v2 निकल गए हमला। ओके, नाउ ये कॉम्बाइन होगा सेपरेटली, बिकॉज ये अभी देखो यहाँ पर जा रहा है। ओके, ये टक्कर हुआ, मारा, फिर वो चिपक गया। ओके, चिपक गया, हाथों में हाथों जा रहा है आगे, और फिर एक और दुश्मन आता है, वो और एक ठप हो जाता है, ठप। ओके, तो वो भी चिपक जाएगा, बिकॉज सब परफेक्टली इलास्टिक है। तो दोनों तीनों चिपक गया। तो ना हम लोग को क्या निकला, हम लोग मोमेंटम से मतलब है। ओके, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका होगा -m × बिकॉज ये पीछे जा रहा है। ओके, और कोलिजन का बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर गिवन है v1/2। ओके, और हम लोग पर मोमेंटम क्या होगा, दैट विल बी mv1 का है, बिकॉज 2m है, प्लस mv1। तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो रेस्ट पर आ जाएगा। एंड नाउ देखो, अभी है रेस्ट पर है, तो मतलब ये खत्म हो गया ऑप्शन, ये खत्म हो गया ऑप्शन। नाउ हम लोग को रेस्ट समवेयर इन द लेफ्ट, रेस्ट इनिशियल, रेस्ट रेस्ट। तो अभी इनिशियल, अभी ये टक्कर किया, तो ये चलते जा रहे हैं ना आगे, राइट चलते जा रहा है, तो दैट्स राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, सपोज बॉल मान लीजिए, फिक्स विद v0 एट एंगल ए। ओके, होराइजन ये है, ए से मारा गया, h पर इसका स्पीड मेजर गया, व्हाट इज बेस्ट डिपेंडेंस ऑफ v ऑन ए। ओके, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, वो कम होगा, एवरी हाइट इट विल गो। ओके, तो वो ए मैटर ही नहीं करेगा दोस्तों, तो खत्म हो गया, सिर्फ एच पर मैटर करेगा। और हम लोग को ए से मैटर करना है, तो सी हो जाएगा इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, ये दिस वाज अ ट्रिवियल क्वेश्चन, मतलब इसमें टोटल का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगाना था। दैट्स वाई बाहर का कॉम्पिटिशन बढ़िया होता है, उसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग मजेदार क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अभी से अभी हार्ड होते ही जाएगा लेकिन। इन अ लाइटवेट सीसॉ, अल्बर्ट ऑफ मास 70, Isaac of mass 80, and Mary of mass 60 are seated in order with equal spacing of 2 meters. Isaac is positioned between Albert and Mary in a way that it balances the seesaw. Neglecting the mass of the seesaw, determine the greatest magnitude of torque relative to the center of the seesaw on the seesaw. Okay, तो हम लोग अभी इसको डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज फिजिक्स सबसे इजी होता है पढ़ना डायग्राम से। तो ये मेरा सीसो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो सब बढ़िया बना लेता हूँ ट्रायंगल, इक्वलेटरल ऐसा तो सर। ठीक है, अभी यहाँ पर एक अल्बर्ट है। ओके, ये एक अल्बर्ट है, यहाँ पर एक आइजैक है। ओके, और फिर यहाँ पर एक दुबली सी मारी है। ओके, तो ये 2 मीटर्स का है डिस्टेंस गिवन, ये भी 2 मीटर्स का है गिवन। हम लोग इसको बाद इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो मैं बताऊंगा, तो ये 2 मीटर्स गिवन है, तो हम लोग इसको
एक्स मान सकते हैं सेंटर टू में, बिकॉज हम लोग को क्या बैलेंसेस मतलब इक्विलिब्रियम पर लाना है, तो ये एक्स हो जाएगा। हम लोग को सेंटर से देखना है, ये एक्स है सेंटर से, ये 2 - एक्स है, ठीक है। और ये कितना है, ये 2 + एक्स है, ओके। नहीं एक सेकेंड, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ये 2 - एक्स है, ओके। मैं ऐसा ले लिया सो दैट इजी पड़ेगा मेरे को देखने पर। और ये 2 + एक्स है, ओके, समझ आई। अभी हम लोग सॉरी दोस्तों, मैं पूरा ही गलती कर दिया, एक सेकेंड, बहुत बहुत सॉरी। तो ये एक सीसो है हमारा, ठीक है, ये हमारा सीसो है, मजेदार सीसो। यहाँ पर हमारा अल्बर्ट बैठल है, ठीक है, थोड़ा सा पफन कर। यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का ये बैठल है, ओके, अल्बर्ट। फिर यहाँ पर हम लोग का अल्बर्ट बैठल है, ओके। फिर यहाँ पर WC मारी बैठल है, ये 2 मीटर है, ओके। ये इससे टू इससे ये 2 मीटर है, ठीक है। नाउ वी हैव डिश टू डिश 2 मीटर। तो हम लोग को सेंटर से लेना है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं 2 - एक्स, ओके। तो हम लोग को सेंटर से लेना है बिकॉज हम लोग को इक्विलिब्रियम पर खोजना है। तो ये 2 - एक्स है, ये एक्स ही है, और ये है 2 + एक्स, ओके, 2 + एक्स। तो हम लोग को इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इक्विलेट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड को। तो ये क्या हो जाएगा, 72 - एक्स इज इक्वल टू 80x + 62 + एक्स। डू को कैसे होगा डेट, ये इस साइड पर है या ये इस साइड पर है, इजाक लेफ्ट साइड पर है या वो राइट साइड पर है, ओके। तो हम लोग इसको इस साइड पर लेके भी चेक कर सकते हैं। पर इफ यू विल सी दैट ये 140 + 10x इज इक्वल टू 120 + 120x, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 110x, ओके। नहीं, ये -140, 140 -70x, हाँ। और यहाँ पर हाँ, तो इसमें आंसर नहीं आ रहा है बिकॉज इफ यू डू तो कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस साइड पर लेंगे बिकॉज ये गिवन है बैलेंस द सीसॉ। तो यहाँ पर इफ 70 80 दोनों जगह, समझो ना, 70 और 80 दोनों जगह तो हैवी हो जाएगा ना इस साइड, आप देखे होंगे सीसॉ पर चढ़ के साइड। तो हम लोग इस ये वाला सिनारियो से चलेंगे, ये वाला को डिलीट कर दे, नाउ ये हो जाएगा 140 -70x इज इक्वल टू 80x + 120 + 60x। ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 70 + 80 + 60, कितना होता है 210x। तो इस कैंसिल कैंसिल, x इज इक्वल टू 2/21, ओके, मैथ लगा दिए ना। हम लोग को x निकल गया, टॉर्क लगाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ, दिस इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ अल्बर्ट, ओके। टॉर्क ऑफ अल्बर्ट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 19/21 इंटू 70, दिस इज इक्वल 133.3। हम लोग टॉर्क ऑफ बेटा भी निकालेंगे, ओके। टॉर्क ऑफ आइजैक मतलब x इंटू 80, 7.6 न्यूटन। एंड देन हम लोग टॉर्क ऑफ एम निकालेंगे, ये 2 + x इंटू 60 है, दिस इज व्हाट 125.7 न्यूटन। तो अभी सबसे ज्यादा यही होगा है ना, तो आंसर हो जाएगा 133.3 न्यूटन, और टॉर्क का ए, टॉर्क है, ओके। अल्बर्ट का सबसे ज्यादा टॉर्क है, कर दूंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, two objects of A and B are launched at the same time and placed from ground onto the moon. Nowhere. Object A is
launched at a speed of 10 meters per second at an angle A above the horizon. Object B is launched with a speed of 10 meters per second at an angle of theta plus 60, measured in the same way. What is the distance between A and B in 2 seconds? Given at this moment it is not here. Okay. तो हम लोग इसको relative projectile velocity से बनाएंगे डिस्टेंस से. तो A and B are under the same acceleration and तो कोई relative acceleration है नहीं. Okay. तो motion of B observed by A will be a constant velocity motion. तो क्या हो जाएगा वो? That will be this. Okay. तो ये वेक्टर्स बना रहे हैं रिलेटिव मोशन से. तो इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स पर सेकंड है, ये इसका भी 10 मीटर्स पर सेकंड है. ऐसा है ना, देखो ऐसा 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 और फिर ये. ओके. तो हम लोग इसको निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये निकालेगा 10 मीटर्स पर सेकंड. ओके, बिकॉज ये दोनों. ओके. तो आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी 10 into 2 और 20 मीटर्स पर सेकंड. आंसर 20 मीटर्स. ये अभी इजी लग रहा होगा, पर हम लोग डेट कल बनाएंगे या परसों बनाएंगे ना, या आज भी थोड़ा सा टाइम के बाद बनाएंगे, वो बहुत टफ हो जाएगा. ओके. इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके. तो वेलोसिटी चल रखे ना एम ए से. ओके. प्लस एम, मतलब ये मास है. ओके. आई इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी. राइट. तो हम लोग आई क्या निकालेंगे? एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी वी ए प्लस एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी. ओके, डिवाइड कर दिया. तो ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन आई इज इक्वल टू लैम्डा वी ए प्लस 1/लैम्डा वी बी. ओके. तो वेर लैम्डा इज 0 से 1. ओके. तो ये कब होगा? वन ऑप्शन पर तो होगा नहीं. ओके. टू ऑप्शन पर हो सकता है, बिकॉज उसमें 1/2 हो जा रहा है. 1/2 वी ए प्लस 1/2 वी बी. थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, बिकॉज उसमें आ जा रहा है माइनस वी बी, 0 हो जा रहा है. और तो फोर्थ ऑप्शन पर आ जाएगा 2/3 एंड 1/3. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड आई पी. ये थोड़ा सा मेरा अनक्लियर है, पर मैं आगे से इम्प्रूव करूंगा. प्लीज फॉरगिव मी. ठीक है. नेक्स्ट. A projectile loaded with explosive is launched from ground at the origin and hit the ground again at a displacement d, where d is greater than 0 and I is in the horizontal direction. It is then launched again for a second time in exactly the same way, but the time the explosion has the velocity 3i minus 2j, where the j is roughly above. Due to the explosion, it split into two parts, A and B. Denote the velocity of A and B just after the explosion by V and VB, respectively. Assume that each part stops immediately after hitting the ground. The final position of the center of mass and both the parts hit the ground by these centimeters I. In which of the following cases these centimeters will be greater than D? Okay. तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ए और बी सेम टाइम पर हिट होगा. राइट. हम लोग स्प्लिट. तो इसमें हम लोग इसको करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा. तो वो फिर से हिट होगा सेम टाइम पर. तो ये क्या हो जाएगा? डी सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू डी. हम्म. फॉर द फर्स्ट वन, अज्यूमिंग फर्स्ट. तो फिर इसमें डी सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू डी. तो विल बी ग्रेटर खत्म हो गया. नाउ टू के लिए ए हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट, बिकॉज ये जल्दी जा रहा है, भाग रहा है, -2 6 हो रहा है और विल गो हियर. तो इट विल बी लॉन्गर. ओके. देन तो ये 2 सेटिस्फाई होगा, तो ये 1 खत्म हो गया, नन खत्म हो गया. अभी ये तीनों पर खत्म हो रहा है. ओके. ना हम लोग को बचल है ए, ये इसमें.
तो इसमें जल्दी भाग रहा है नीचे, हाँ, पर हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा है, पर लॉन्गर होगा ना, बिकॉज फर्स्ट लॉन्च पर क्या है, वो सीधा 3i-2j हो रहा है, ओके, आई इन हॉरिजॉन्टल, ओके। तो दैट्स वाई ये हो जाएगा 3 आंसर, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये इसमें हम लोग लगाएंगे स्प्रिंग वाला, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हाफ mv² ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर ओके, प्लस यू के mgx ओके। ये स्प्रिंग, ये इसका है, इस एक बार मैं पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को। 1 kg mass is attached to a horizontal spring with a spring constant of 10 newtons meters to move on a rough horizontal surface. Let the line of motion be x-axis and mass well down the string is unstretched. The coefficient of static friction is 0.40 and 0.30 respectively. The mass initially at the origin and is given a speed of 1 meters in the. What is the position? We will come to a complete stop. Okay, complete stop पर आना है इसको। तो इसमें दिस विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगा के, फिर एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको इससे ले जाए, मतलब इसको इससे ले जाते हैं सिंपल करने के लिए, माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू 0। इसको लगा दे, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू बी माइनस b² प्लस 4ac होल रूट b² - 4ac वो बोला। तो x इज इक्वल टू व्हाट, हाफ म्यू के mg प्लस माइनस रूट म्यू के स्क्वायर m² g² प्लस के mv² अपॉन होल के, ओके। ये हम लोग लगाएंगे, तो नेगेटिव रूट तो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को पॉजिटिव ही पर काम करना है। तो ये जाएगा क्या, म्यू के स्क्वायर m² g² प्लस के mv² होल रूट माइनस म्यू के mg बाई के इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। वैल्यू लगा दे, के इज इक्वल टू 10, म्यू के इज इक्वल टू 0.30 0.30 ओके। m is equal to v given is v is equal to 1 meters per second, ठीक है, और m is equal to 1, वैल्यू लगा के क्या आ जाएगा, 1.0.138 meters इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो पोजीशन पूछ रहा है, तो हम लोग ये आंसर हो जाएगा ए। चेक करने के लिए, न्यू एस एम जी इज अप्रोक्सीमेटली 3.92 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन के एक्स, दैट्स व्हाई हम लोग चेक करके ला सकते हैं ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Two identical triangles with mass m are placed on a frictional horizontal surface. A sphere with mass m is held by the triangles without failing, as shown in the diagram below. Consider that the surface between the sphere and the triangles is frictionless. Find the minimum value of the coefficient of static friction uh, between the triangle and the surface so that the triangles will not slide away. Okay? इसको slide away नहीं करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, FBD बनाएंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इफ स्फीयर का बनाएंगे, मतलब स्फीयर का बनाएंगे, यहाँ पर स्फीयर है, यहाँ पर ये है नॉर्मल, यहाँ पर mg लग रहा है, यहाँ पर इसको डॉट 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 से, यहाँ से एक, यहाँ से n लग रहा है, यहाँ इसका तरफ से, और यहाँ से एक n लग रहा है, तो ये 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज, ठीक है। ये स्फीयर का बन गया FBD। नाउ इसका बनाएंगे ट्रायंगल लेफ्ट का, तो कैसे बनेगा, यहाँ से नॉर्मल जा रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ से mg जा रहा है नीचे, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा है, ओके, और यहाँ से ग्राउंड का फ्रिक्शन स्फीयर का नॉर्मल 10 45, ठीक है। देन वी हैव ट्रायंगल राइट, तो ये ऊपर n, देन वी हैव
यहाँ से Fs, then we have नीचे से Mg, then we have यहाँ का स्फीयर का N। ओके, बेसिकली इसका ठीक फ्लिप कर दो तो आंसर। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉस 2n sin 45 माइनस mg इज इक्वल टू 0। ओके, इससे स्फीयर वाला से फिर इससे लिख सकते हैं सेकेंड लॉ से n sin 45 प्लस mg माइनस n इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसका लिख देता हूँ, ठीक सेम ही रहेगा, n sin 45 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तीन को हमारे पास इक्वेशन आ गया, इससे और इससे दोनों आ गया, ये इससे आ गया, ये और ये इससे आ गया, और ये भी और ये इससे आ गया, बिकॉज दोनों फ्लिप थे ना, तो इससे दोनों सेम इक्वेशन देगा। तो हम लोग इसको और इसको कमेंट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा mg/2 प्लस mg इज इक्वल टू n। ठीक है, फिर इसको और इसको कमेंट कर देते हैं, क्या आ जाएगा mg/2 इज इक्वल टू एफ एस। तो हम लोग को क्या निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज ऑलवेज बिगर देन एफ एस अपॉन एन, राइट। व्हाट इज दैट, mg/2 अपॉन mg/2 प्लस mg। ठीक है, व्हाट इज दैट, m/m प्लस 2m। दिस इज द 12 एंड 13 दोनों सेम ही होता है। ठीक है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बना है। A mass m is hanging on a massless ring, which slides through a straight cable that makes a 30 degree। okay, ये एक स्ट्रेट केबल है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पर रिंग है। ओके, there may be friction between the ring and the cable, the mass accelerates to a straight line, okay, parallel to the cable above। ठीक है, हम लोग को निकालना है if the angle phi between the cable and the screen hanging the mass is 90, what is the magnitude of the friction between the ring and the cable। okay,